دیکھیے ایک بات بالکل صاف ہے، اس کو بچہ بھی سمجھ لے گا کہ بھئی ہم انسانوں کا ایک مالک ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ہماری آنکھ ناک کان بنائے ہیں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ اب ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس دنیا میں بھیجا۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو بالکل بچہ بھی سمجھ لے گا کہ اس مالک نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں پیدا کیا، احسان کیا، اور پھر ہر وقت ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ ہم اس کی دی ہوئی روزی ہر وقت کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اب جو انسان اس مالک کی طرف سے ایمانداری کی نیتی اپنائے گا تو اس کا احسان مانے گا، اسے مالک سمجھے گا۔ جب بھی اس کی روزی، اس کی نعمت کا استعمال کرے گا تو اس کا شکر ادا کرے گا، اور اس مالک کی جو ہے صحیح پہچان کر کے اور اس کے صحیح حکموں کو پہچان کر کے اس کے حکموں پر چلے گا، جو اس کے حکم اسلام دھرم میں بتائے گئے ہیں، اور صحیح پہچان سنسار کے سچے مالک کی اسلام دھرم میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ ہے ایمانداری پر چلنے والے کی پوتر آستھا، پوتر پاک یقین ایشور کی طرف سے۔ اب ایک ہے اپوتر ناپاک یقین۔ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر چلنے والے کے لیے، ایمانداری کی نیت پر چلنے والے کے لیے صحیح یقین یہ ہے کہ تو بنا مالک کے دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ تیرا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں تیری جان ہے، تیرے نہ چاہنے کے باوجود وہ تجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ یہ کائنات کو وہی چلا رہا ہے اور وہ تیرا امتحان لے رہا ہے، ہاں، چاہے تو اس کا احسان مان یا اس کا انکار کر۔ تو جو اسلام دھرم کے دوارا آج کے زمانے میں اپنے صحیح مالک کو مانے گا اور اس کے حکموں کو مانے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کو مالک سمجھے گا، تو یہ ہے پوتر یقین ایشور کی طرف سے کہ وہ اپنے بنانے والے مالک سے ڈرے گا اور اس کے حکم پہ چلے گا۔ اور اپوتر ناپاک یقین کیا ہے کہ اس مالک کا انکار کرے گا یا اس مالک کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا۔ بہت سارے یقین ہیں لوگوں کے، بہت ساری آستھائیں ہیں ایشور کے سمبندھ میں، جو اس یقین کے علاوہ سب ناپاک ہیں، گندے یقین ہیں، گندی آستھا ہیں، شیطان کی آستھا ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو، اپنی من کو جو ہے اللہ کے سامنے، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے سرنڈر کر دے، اپنی گردن کو جھکا دے اور اس کا غلام بن کے جیون جیے، اس کی مرضی پر جیون جیے۔ ایسے انسان کے سامنے جب بھی اللہ ایشور کی بات آئے گی، سنسار کے سچے مالک کی بات آئے گی، تو وہ محتاج بن کر سنے گا، اللہ سے ڈرے گا اور اس کو نصیحت حاصل کرے گا اور اچھی بات کو مانے گا۔ اور جو انسان گندا یقین رکھنے والا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ اللہ کی تعریف برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ وہ اپنی خواہشوں کا غلام ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کا خود خدا ہے۔ جس نے اپنی مرضی، اپنا من، اپنی خواہش اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے سرنڈر نہیں کی، اپنے آپ کو نہیں جھکایا، تو وہ انسان پھر اپنی خواہش کا غلام ہے، اور اپنے خواہشوں کا، اپنے من کی مرضی کا وہ خود خدا ہے۔ وہ ایشور کا، اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکاری ہے اور اس کا ناشکرا ہے۔ وہ اس کا کوئی احسان نہیں مانتا کہ اس نے جیون دیا ہے، وہ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دھرتی اس کی، سب کچھ اس کا ہے۔ اب لوگ دنیا میں منمانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مالک نے فری ول دیا ہے، موت تک چھوٹ دی ہے انسان کو، جیون کا سمے دے دیا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے اس کی طرف سے۔ یہاں وہ اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو چھانٹ رہا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے، کون میری ناقدری کرتا ہے۔ اب جو جیسے کرم کر کے مرے گا وہ ویسے ہی بدلہ پائے گا موت کے بعد۔ نہ شکرا نرک کی آگ میں جائے گا، اور شکر کرنے والا، اس کا احسان ماننے والا سورگ میں اچھا بدلہ پائے گا۔ تو آگے ہماری یہ گیان چرچا سننے کے بعد آپ کو یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ کون مالک کو ماننے والا ہے اور کون اس کا انکار کرنے والا ہے، اور کون سچائی پر ہے اور کون برائی پر ہے۔ برا انسان ہی اپنی زبان سے برے شبد بولے گا، اچھا انسان سیدھی راہ پر چلے گا، وہ بولنے کی نیت نہیں کرے گا برا شبد۔ اگر انجانے میں اس سے غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لے گا، کیونکہ دنیا میں برائی کا ماحول ہے، تو انسان برائی کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے، تو برائی کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جو انسان اللہ کا انکاری ہوگا، اس کا ناشکرا ہوگا، وہ کبھی بھی اس کی تعریف کو جو ہے پسند نہیں کرے گا۔ یہ اس کی پہچان ہے، اور نہ ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے اچھے حکموں سے نصیحت حاصل کرے گا، اور نہ ایشور سے، اللہ سے ڈرے گا۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ ایشور سے نہ ڈرنے والے ہی نقصان میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں
जीवन का इम्तिहान का वक्त बहुत थोड़ा है इंसान के पास। इंसान को चाहिए कि बेफजूल की बात ना करके और जीवन के मकसद पर अल्लाह को पाने के ऊपर ज्ञान की बात करे। तो हमें उस ज्ञान पर चर्चा करनी चाहिए जिससे हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। शैतान इंसान को उन बातों में उलझाता है जो अल्लाह से दूर कर दे और सही राह को ना समझ पाए और भटक जाए, और उस भटकने में जो है इंसान को कोई फ़ायदा ना हो पाए। अब जैसे कोई शख्स ये कहे कि मैं इंसान के अंदर आत्मा को अपनी इन सर की आँखों से देखना चाहता हूँ, तो उसे देखने में तुझे फ़ायदा क्या होगा? हैं, फ़ायदा इसमें है अब ना तो उसको देख सकता है, आँख से नहीं देख सकता, तो फ़ायदा इसमें है कि तू अपने मालिक का वो ज्ञान हासिल कर जो मालिक को राज़ी करने का ज्ञान हो। थोड़ा सा वक्त है, इसको बेकार बातों में बर्बाद ना करें। समझदारी इसी में है कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाला ज्ञान हासिल करें। इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमें इम्तिहान के लिए चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, ये दी गई हैं। इनमें हमें जल्दी से जल्दी गौर करना है, जीवन के मकसद को पहचानना है, अल्लाह को राज़ी करके मर के यहाँ से जाना है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ पर कामयाबी हासिल करना है। तो मैं अक्सर जो है गैर मुसलमान भाइयों में इस्लाम की दावत देने जाता रहता हूँ, और मैं यही बात उन लोगों से कहता हूँ कि जो सही ज्ञान है उसको समझो, बेफजूल की बातों में वक्त को बर्बाद ना करो। तो मेरे भाइयों, जो इंसान बुराई के रास्ते पर अल्लाह ईश्वर की तरफ से अपवित्र नापाक यकीन पर होगा, नापाक आस्था पर होगा, अपवित्र गंदी आस्था पर होगा, शैतान के रास्ते पर होगा, तो ऐसे लोग बिगड़ी हुई अकल होते हैं। कुछ सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं, सच कम बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें भी आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर की रचना के आधार पर सीधी राह से हटे हुए होते हैं, पूरी तरह सच्चाई पर नहीं चलते, पूरी तरह बुराई से नहीं बचते, तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलेंगे। ऐसे लोगों की बात समझ में भी नहीं आएंगी, न सीधी राह पा पाएंगे आप। क्योंकि याद रखें, अल्लाह ईश्वर पर पवित्र पाक यकीन सिर्फ एक ही है, अनेक नहीं है। जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक ही है, अनेक नहीं है। उसका कानून भी सारे इंसानों के लिए एक ही है, अनेक नहीं है। तो उसकी आस्था सबके लिए एक ही है, अनेक नहीं है। और शैतानी अपवित्र गंदे नापाक आस्था और यकीन बहुत सारे हैं। तो अल्लाह ईश्वर की दी हुई अकल से सच और झूठ को पहचानें और अपने अंदर से दिल की आस्था ईश्वर के संबंध में, अल्लाह के संबंध में पाक और पवित्र बनाएं और अपने आप को शैतानी धोखे से बचाएं। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं।
यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा। और जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। और उसके बाद सख्त अजाब होगा, जिन दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। यही वो जहन्नम है जिसे गुनहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था
اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، نہ کہ سنستھاپک، اور اسلام 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا دھرم ہے۔ اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں ان پر لگام لگ سکے۔